Hello students. So this is going to be the last class for your ancient Indian history course, and as you know that we are also going to conduct the test tomorrow, and this is going to be a really interesting test for you all to actually analyze how much you have gained in terms of the knowledge and information for both UPSC as well as APSC. Before we start, these are the links that you can follow our YouTube channel, our Instagram page, Facebook page, along with Telegram channel. And you can always get back to us by calling these numbers if you have any doubts or if you want to ask anything or even if you want to get a counseling for preparation of UPSC and APSC. You can get our app downloaded in Play Store, okay, which is available with the name of CSAP, and it is not yet available in the Apple iStore, but it will be soon available in the Apple iStore. It's taking time because of the delay of because of the situation of COVID-19. So moving ahead, this is a new initiative of ours wherein we have launched the GS course along with the newspaper batch, wherein we are going to conduct the classes from all the important NCERT's perspective along with the standard books for GS, and we'll be also covering topic-wise analysis on a monthly basis based on different standard newspapers like The Hindu, Indian Express, PIB and other important magazines along with Assam Tribune, which will be important for you to cover and have a brief idea about all the topics of the syllabus as per the new pattern for APSC as well as the existing pattern of UPSC, जिसका रेट बहुत ही सस्ता में आपको मिल रहा है. That is your, if you take the entire subscription for 10 months around, okay, you will be getting it at around 15,999 only. And if you can also go ahead with a 5 months package, that is 7,999 only, okay. And you'll be also getting a 3 years current affairs compiled notes, और आपको हर एक सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल्स मिलेगा, वेरी एग्जॉस्टिव एंड वेरी इंटेंसिव. इट कैन बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू ऑल, ओके. इससे ज़्यादा और आपको नहीं पढ़ना है, दैट इज गारंटीड. वी आर कवरिंग ऑल द इंपॉर्टेंट सोर्सेज फॉर ऑल द टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस, दैट इज guaranteed, okay. And do this for the next 10 months and see how much confidence you gain in your preparation and how much it will take you close to in order to achieve a good rank in your upcoming exams. So moving ahead, so we had completed the Gupta's age, Gupta's empire in the last class, and now we are just left out with the last portion, some of the important topics again from your ancient Indian history part. So let us see what was the or how was the scenario in the Eastern India at this time period. And these things are there in the NCERT, that is R.S. Sharma. So I have also covered it in the notes. We'll also be covering all the important things like Harsha's empire and also the Pallavas, okay, in this lecture itself, so that we complete the entire part of ancient Indian history within this lecture. So moving ahead, what were the signs of civilization at this time period? If you see that it's written in the NCERT that various inscription from 4th century, okay, that is during the Gupta era, it tells us about the advanced rural economy. इसका मतलब है rural economy was also flourishing, and that is obvious because you know that with the advent of the iron age आपका agriculture बहुत flourish हो गया था, trade and culture बहुत, craft industry and artisans industry were flourishing in a very prominent manner, and trade and commerce and issue of coins and gold coins was very prominent. And we can see that the rural economy was also very advanced. Formation of state systems हो चुका था वहां पे, हमने already देखा है the administration systems of all the टाइम पीरियड. मौर्यंस का देखा है अलग से, पोस्ट मौर्यन का अलग से देखा है. देन वी हैव आल्सो सीन द गुप्तास, ओके, द एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप. हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा, ओके, वैदिक सिविलाइजेशन सबका देखा है. इफ यू हैव मिस्ड एनीथिंग, प्लीज गो बैक टू द लास्ट लेक्चर्स एंड प्लीज complete your course and you will definitely gain a confidence. And we have tried to complete this entire ancient Indian history in 14 lectures, okay, and the time duration is somewhere around, you can say, around 20 hours in total. और 20 घंटे में हमने पूरा एंशियंट इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट किया है. एंड इफ यू डू इट एट अ वेरी war footing manner,
you can complete ancient Indian history in just 5 days if you're giving 6-7 hours daily to ancient Indian history, because you'll also need time to go through the notes and listen to the lectures. So 5 days में आप पूरा ancient Indian history खत्म कर सकते हो. Okay, and that is one of the biggest thing. After like you go through the all the videos and go through the notes, और notes भी हमने ऐसे बनाया कि आप उसको बार बार रिवाइज करो. Okay, and that will definitely make you help you, okay, attempt all the questions correctly in the exams. So we have seen that in the 4th century, rural economy was very advanced along with the formation of state systems and delineation of social classes. Okay, in eastern MP, Orissa, eastern Bengal, southern Bengal along with Assam. तो सोशल क्लासेस का तो इमर्जेंस हो ही गया था, आपको पता ही है, लास्ट लेक्चर्स में हमने काफी डिटेल्स में डिस्कस किया है. They were apparent in a recognizable form very late in large part of eastern India. तो ईस्टर्न इंडिया में भी थोड़ा लेट आया, लेकिन it was recognized. Okay, and there was form of collection of taxes to maintain order from social classes, administration, production. ये सब कुछ चल रहा था ईस्टर्न इंडिया में. Why ईस्टर्न इंडिया we are studying? Because अभी तक ईस्टर्न इंडिया को इतने डिटेल्स में हमने कवर नहीं किया था. Because if you see Mauryan dynasty, Gupta dynasty, this was majorly focused on the northern part and northwestern part and southern part. Okay, northeastern part or this places were a bit, they were ignored till now. So we are covering it. For example, उड़ीसा में उस टाइम पे आपको पता होगा कलिंगा rose to importance under Ashoka. We have already seen this. और कौन रूलर थे? वो very famous ruler, that was Kharavela. Okay, had advanced as far as Magध तक advance कर लिया था. And आपको पता है ये हमने कलिंगा वार एंड अशोका मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पीरियड में हमने इसको डिटेल्स में डिस्कस किया. Okay, they were also having trade contacts with Romans, and my dear friends, you can see that Romans के साथ almost सबका contact था. Because हमने जब संगम एज देखा, तो संगम एज में भी we saw that how the different kingdoms like Cholas, Cheras, Pandyas of that time period, ठीक है, कैसे they were also having the good relation with the Roman Empire and their trade was also flourishing. And in the coastal Orissa, you can see that writing had certainly been known in the 3rd century BC, and the inscriptions up to the mid 4th century AD were written in Prakrit. तो पहले सारे चीजें किस लैंग्वेज में लिखा गया था? आपका प्राकृत लैंग्वेज में ही आपका लिखा गया था. ओके, एंड अबाउट 350 onwards संस्कृत began to be used. ठीक है, so संस्कृत began to be used. So you can see this point. After that 4th century to 6th century आपका several states were formed in Odisha, जैसे मराठास हो गया, वैश्यास हो गया, नालास हो गया, मानस हो गया. ओके, so these were the things, and then this state developed in system of taxation, administration, military organization. ये सब develop हो चुका था वहां पे. Okay, moving ahead with Bengal. So आप देख सकते हो कि कुछ inscriptions आपका प्राकृत लैंग्वेज में था. ओके, बंगाल में, एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट में भी था by 2nd century BC. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, बट स्टिल एनसीईआरटी में है, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू. ओके, उनको संस्कृत के नॉलेज भी आता था. ओके, एंड दे वर डिवोटी ऑफ विष्णु, दैट मींस हिंदुइज्म वाज देयर, ब्राह्मणिज्म वाज देयर. ओके, और जो आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच वाला जो एरिया था, जो आज का बांग्लादेश है, दैट इमर्ज एज अ सेटल्ड एंड फेयरली संस्कृत एजुकेटेड रीजन इन 5th and 6th centuries. ओके, सो जो आज का बांग्लादेश रीजन है वो उस टाइम पे आपका संस्कृत एजुकेटेड रीजन के हिसाब से इमर्ज हो गया था. और जो आपका गुप्ता गवर्नर है वो भी by 550 AD became independent and occupied North Bengal. ठीक है, और आपका 432-433 BC AD के बाद we notice a series of land scale documents, okay, from North Bengal. Okay, land sale documents from North Bengal, मतलब land was started to becoming a private property. Moving ahead, you can see the land sale documents not only indicate the existence of different social groups but also shed valuable light on the expansion of agriculture. And this were happening. Okay, गुप्ताज के टाइम पे भी एग्रीकल्चर काफी आगे डेवलप हो चुका था. एंड जो आपका ब्रह्मपुत्र और बंगाल रीजन में जो डेल्टाइक पोर्शन है, इट वाज कॉल्ड एज समाताता. ठीक है, और समाताता में आपका you can see that this area was developed as fairly organized state covering Samatata, and Sama Haradeva issued a substantial number of gold coins in the 6th century. ठीक है, तो अभी हम काफी आगे आ चुके हैं, 5th century 6th century डिस्कस करें, बिकॉज अभी हम हर्षा एम्पायर भी डिस्कस करेंगे.
and this is what post Gupta time period. So आप देख सकते हो कि Samatata is an important term for your prelims, so you should know this. And in the 7th century there existed a state of Khargas in the Dhaka area. तो ये बहुत important है prelims के लिए, ठीक है. Khargas, then the Samatata word, these are the terms important for prelims. And what are these exactly terms we have discussed? So it becomes important from prelims perspective. And they also created what? Agraharas, grant of land. ये term already आ चुका है आपका एग्जाम में, ठीक है. अग्रहारास का मतलब क्या है? That is granting of lands. देन एक फिजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट डेवलप किया था जिसका नाम है आपका दंदा भुक्ति, ठीक है. एंड वाज फॉर्म्ड इन द बॉर्डर एरियाज बिटवीन बंगाल एंड उड़ीसा. सो दंदा भुक्ति क्या है? आपका एक फिजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, यूनिट. ओके, जैसे आज के टाइम पे एक सर्कल ऑफ सर्कल. ओके, व्हाट इज अ सर्कल, व्हाट इज अ ब्लॉक, व्हाट इज अ like district is also like it is in a bigger scale. Okay, but in a fiscal level if you say, then you can say that it we can use the term of circle. And if we are talking about administration, then also we can talk about block or maybe district level also. Okay, so उस time पे दंदा भुक्ति was there. Then progress of Brahmanism and the coming of Buddhism from about middle of 5th century. ठीक है, आपको पता है क्यों कि बिकॉज आपका गुप्ता डायनेस्टी आने के बाद फिर से रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म हुआ था. ओके, एंड 5th सेंचुरी के बाद काफी सारे स्टेच्यूज वे आर बीइंग सेट अप, ठीक है. देन 5th to 7th centuries also saw the formation of about half of a dozen states. तो नए नए states अभी फॉर्म हो रहा था. And administrative functionaries of each state knew Sanskrit as it was the official language. Okay, so this is an important point. You can see this. Sanskrit was now becoming the official language of many states. Okay, and they were also familiar with the teachings of Puranas and Dharmasastras. तो हमने ये चीजें already Vedic age में देखा है. Okay, and these are all a part of the Vedas. असम देखते हैं हम. ओके, अपना स्टेट है. सो यू नो, एंड दिस विल बी कवरिंग इन बहुत ही डिटेल्स में कवर करेंगे हम असम हिस्ट्री क्लासेस में. ओके, एंड वेरी सून विल बी कमिंग अप विद असम हिस्ट्री क्लासेस, बिकॉज इसके बाद आपको अभी मिडिवल हिस्ट्री बाय 23rd ऑफ दिस मंथ मिडिवल हिस्ट्री विल बी कंप्लीट. एंड 25th से आइदर आपका आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट हो जाएगा या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा. Okay, and by the month of June, your entire history will be complete, covering ancient Indian history, medieval Indian history, art and culture, along with your मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड असम हिस्ट्री. ठीक है, ये सारे पोर्शंस कवर हो जाएगा बाय जून. एंड इफ यू आर गिविंग एपीएससी, ओके, आपका ऑलमोस्ट अराउंड 25 से 30 क्वेश्चंस कवर हो जाएगा फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. ओके, और अगर आप यूपीएससी का बात करो देन आपका 20 से 22 क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा. ओके, मूविंग अहेड विद असम. सो असम वाज इनिशियली नोन एज कामरूप, यू नो दिस. ओके, and this was in the Brahmaputra basin running east to west, and this came into prominence in the 7th century. Okay, you can see this in the 7th century. Varman dynasty वगैरह था उस टाइम पे. हम बहुत ही डिटेल्स में कवर करने वाला है इन असम हिस्ट्री क्लासेस, डोंट वरी. Then Davaka. Okay, Davaka possibly accounted for a portion of Nagaon district, that is present Nagaon, and Kamrup covered the Brahmaputra basin. ठीक है, द कामरूप, इस पोर्शन से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी आता है, जैसे कि आपको पता होगा अभी जैसे हम देखेंगे कि हुएन सिंह आया था इस टाइम पीरियड में. ओके, हुएन सिंह हैड विजिटेड गुप्तास के टाइम पीरियड में आपका फाहियन विजिट किया था. एंड वी हैड सीन अबाउट द फाहियंस अकाउंट्स इन डिटेल्स इन द लास्ट क्लास, दैट इज ऑफ गुप्ता डायनेस्टी. तो इसमें हम अभी देखेंगे हुएन सिंह आया था. और हुएन सिंह कौन सा असम हिस्ट्री का कौन सा राजा के टाइम पीरियड में आया था असम में? ओके, ही विजिटेड असम आल्सो. ओके, दैट इज योर कुमार भास्कर वर्मन. So this becomes very important. Okay, and the Kamrupa kings adopted the title Varman. You can see this. Okay, Kumar Bhaskar Varman also, he was ruling at this time period, and you can see this becomes very important from prelims perspective. Then you can see in the 7th century Bhaskar Varman, okay, जिसके बारे में हम discuss कर रहे थे, he emerged as the head of the state which control a substantial part of the Brahmaputra basin. और जो Chinese traveler है आपका हुएन सेंग, ये already यहाँ पे mentioned है, NCERT में mentioned है, and this question is coming also in the exam. Okay, so Huan Seng had visited, okay, and during the rule of Kumar Bhaskar Varman. Although different parts of eastern India acquired prominence at different times, the formative phase ranged from 4th to 7th century. ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में फॉर्म हो रहे थे सब कुछ. This was a formative phase. And decline and fall of Gupta Empire therefore coincided with a considerable progress in the outlying regions. तो जैसे ही गुप्ता डायनेस्टी फॉल हो रहा था, सराउंडिंग्स में, okay, all the kingdoms they were growing, okay, and there were considerable progress in the outlying regions. So आप देख सकते हो कि
बाहर के रीजन में आपका काफी सारे ट्राइबल चीफ्स एंड दे वर रूलिंग इट एंड दे केम इनटू लाइमलाइट नाउ. ओके, सो विद दिस, ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, okay, that is coming to an end. Now we are moving ahead with the most important part, that is your Harsha and his time period. Okay. Okay, so let us move ahead with the Harsha and his time period, one of the most important part of today's lecture. और आपको पता है कि जैसे डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर हुआ, उसके बाद आपका उस नॉर्थ इंडियन एरिया में आपका बहुत ज्यादा पॉलिटिकल डिसऑर्डर एंड डिसयूनिटी हैड स्टार्टेड इन नॉर्थ इंडिया. ओके, एंड इसके साथ आपका हुनास ने भी आपको आपका, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा ही था ऑलरेडी, हुनास ने भी आपका अटैक करना स्टार्ट कर दिया था एंड दैट हैड आल्सो लेड टू द दिस. स्कंद गुप्ता ने हुनास को हराया था, लेकिन उसके बाद हुनास एक्चुअली कुड नॉट बी डिफीटेड बाय द गुप्तास एंड गुप्ता एम्पायर का फॉल हुआ. एंड वन इट वाज द बाय द बिगिनिंग ऑफ द 7th सेंचुरी तक, ठीक है, आपका हर्षवर्धन ने सक्सीड कर लिया था इन एस्टैब्लिशिंग अ वेरी लार्ज किंगडम इन नॉर्थ इंडिया. ओके, हर्षवर्धन ने आपका बाय 7th सेंचुरी, बिगिनिंग ऑफ 7th सेंचुरी, प्लीज ध्यान से सुनो आप. ओके, he had actually succeeded in establishing a very very large kingdom in the north India. ठीक है, और गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन होने के बाद हर्षवर्धन had actually succeeded in establishing a large kingdom. So let us see कि हर्षा ने how he came, you know, how Harsha's rise to power actually happened. सो एक छोटा सा स्टोरी, आप स्टोरी इन स्टोरी नहीं है ये, दिस इज अ फैक्ट. ओके, सो आपको बताना चाहता हूं एंड दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, लेकिन आपको जानना चाहिए. ओके, हर्षा एक्चुअली हैड अ सिस्टर. ओके, हर्षा हैड अ सिस्टर जिसका नाम है राजश्री. ओके, राजश्री हु वाज मैरिड टू किंग ग्रहवर्मन ऑफ कनौज. ठीक है, तो जो कनौज था जिसको हर्षा ने बाद में कैपिटल बनाया. ओके, तो कनौज का जो राजा है था आपका ग्रहवर्मन, उनके साथ हर्षा का सिस्टर का शादी हुआ था, दैट इज राजश्री गॉट मैरिड टू ग्रहवर्मन ऑफ कनौज. ऑन द अदर हैंड, बंगाल का राजा था उस टाइम का आपका सशंका. ओके, द गौड़ा किंग. ओके, देयर वाज अ गौड़ा डायनेस्टी गोइंग ऑन एट बंगाल एट दैट टाइम, और जो राजा का नाम था आपका शशंका. ओके, व्हाट ही डिड, उन्होंने ग्रहवर्मन जो कनौज का राजा था उनको ही किल्ड हिम. ओके, एंड केप्ट राजश्री इनटू प्रिजन. सो जो वेस्ट बंगाल का जो राजा था शशंका, उन्होंने हर्षा का जो बहन है राजश्री का हस्बैंड ग्रहवर्मन, उसको मार के राजश्री को प्रिजनर रख दिया. सो इससे क्या होगा, सो डेफिनेटली हर्षवर्धन का किंगडम विल फाइट विथ नाउ whom, बंगाल का किंग दैट इज शशंका. ओके, लेकिन हर्षवर्धन एक्चुअली डिड नॉट फाइट, जो उनका बड़ा भाई था दैट इज राज्यवर्धन. ओके, राज्यवर्धन फॉट शशंका एंड राज्यवर्धन वाज डिफीटेड एंड किल्ड. ओके, शशंका ने राज्यवर्धन को मार दिया एंड दैट लेड टू, ओके, हर्षा हैड टू बिकम द किंग एट द एज ऑफ 16 itself. गेटिंग इट? So that is why उनका बड़ा भाई को मार दिया गया था by शशंका and Harsha became the king at the age of 16. तो ये थोड़ा सा छोटा सा स्टोरी था about हर्षवर्धन, how he rose to power, and at the age of 16 उन्होंने क्या किया आपका, he became the king of this dynasty. Okay, and he ascended the throne at Thanesshar. ठीक है, पहले उनका थनेश्वर में था, पहले कनौज में नहीं था, बिकॉज कनौज में तो आपका ग्रहवर्मन रूल कर रहे थे जिसको शशंक ने हरा दिया था. ठीक है, तो दैट मीन्स व्हाट, अभी हर्षा को शशंक ऑफ बंगाल के साथ लड़ाई करना पड़ेगा. ओके, और एंड मोर ओवर बाय दिस टाइम हर्षा का बहन जो राजश्री इज ऑलरेडी केप्ट एज अ प्रिजनर एट शशंकास किंगडम. ठीक है, सो हर्षवर्धन ने क्या किया, ही न्यू दैट ही कुड नॉट अलोन डिफीट शशंका, तो उन्होंने, नाउ कम्स द इंपॉर्टेंस ऑफ असम हिस्ट्री, तो उन्होंने भास्कर वर्मन, ओके, जो हमारे किंग था असम में कामरूपा किंग, तो भास्कर वर्मन के साथ उन्होंने टाई अप किया एंड दे टुगेदर डिफीटेड शशंका. ओके, एंड दिस लेड कि हर्षा आल्सो बिकेम द किंग ऑफ कनौज आफ्टर दिस. Okay, Harsha also became the king of Kanauj after this. So this was a very interesting story. Okay, I hope you have
captured it. Okay, very well. Let us move ahead. Now see, this is not going to come in the exam, but still you should know that शशांका जो था गौड़ा किंग, उनके साथ हर्षा का लड़ाई हुआ, और हर्षा ने किसके साथ टाई अप किया था? वस्कर वर्मन ऑफ कामरूपा किंग, एंड टुगेदर दे डिफीटेड शशांका एंड हर्षा बिकेम द किंग ऑफ कनौज आफ्टर दैट. ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट आपका लिटरेरी अकाउंट्स जो हर्षा चरिता है, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव आल्सो. ओके, हर्षा चरिता वाज रिटन बाय बाना भट्टा. ठीक है, एंड दिस वाज, एंड बाना भट्टा वाज व्हाट? द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षा इटसेल्फ. एंड हर्षा चरिता, यू नो, दिस इज ऑल अबाउट द हर्षा. ओके, ये आपका बायोग्राफी है और बाना भट्टा ने लिखा था, एंड ही वाज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षा. इवन ह्वेनसंग विजिटेड इंडिया इन द 7th सेंचुरी, और वो 15 साल तक इंडिया में रुके थे. ठीक है, हर्षास जो इंस्क्रिप्शन है उनके, इट स्पीक्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस एंड ऑफिशियल्स, हम देखेंगे. ओके, मैक्सिमम इट वाज सिमिलर टू गुप्ता डायनेस्टी इटसेल्फ. ठीक है, तो इतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं अराइज होगा आपको. इट वाज ऑलमोस्ट सिमिलर टू गुप्ता डायनेस्टी. एंड हर्षा इज कॉल्ड द लास्ट ग्रेट हिंदू एम्पायर ऑफ इंडिया, बिकॉज इसके बाद क्या होने वाला, अभी जैसे हम मीडिएवल में के टुवर्ड्स आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि आपका अभी Afghan Islam invasions will start now. Okay, and then medieval history will be all about the rise of Islam and also about the Mughal dynasties and everything. We'll see that in the medieval classes. Okay, so Harsha is called as the what? Last Hindu emperor of India. So this becomes thoda sa important from exam perspective. Okay, his authority was limited to North India excluding Kashmir. ठीक है, हर्षा का जो ऑथोरिटी था वो लिमिटेड था आपका नॉर्थ इंडिया तक. और एक बात आपको देखने को मिलेगा भी कि हर्षा का जो साउथ इंडिया में एक्सटेंशन नहीं हुआ. पुलकेशिन टू नाम का एक राजा था, हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में. उन्होंने क्या किया आपका, उन्होंने हर्षा को आगे नहीं बढ़ने दिया फ्रॉम द नर्मदा वैली. तो हर्षा का किंगडम जो था नर्मदा वैली तक ही लिमिटेड था. ओके, हिज ऑथोरिटी वाज लिमिटेड टू नॉर्थ इंडिया एक्सक्लूडिंग कश्मीर. और राजस्थान, पंजाब, यूपी, बिहार, उड़ीसा, ऑल दीज वर अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ हर्षा. ओके, एंड बट हिज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस स्प्रेड ओवर अ मच वाइडर एरिया. तो उसको एक्चुअली हम क्या बोलते हैं, जैसे हम अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल है. ठीक है, हर्षा वाज हैविंग डायरेक्ट कंट्रोल कहाँ पे आपका? राजस्थान, पंजाब, यूपी, बिहार एंड उड़ीसा. बट देयर वाज अनदर मैकेनिज्म कि जो टेरिटरीज ऑफ हर्षा वर एक्चुअली डिवाइडेड, इट वाज एक्चुअली डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. एक तो आपका डायरेक्ट टेरिटरीज हो गया जिसमें हर्षा का डायरेक्ट कंट्रोल है. ठीक है, सेकेंडली हर्षा का फ्यूडेटरीज था. ओके, इट वाज अ फ्यूडल लॉर्ड्स हु वर रूलिंग, बट हर्षा का influence, sphere of influence were there. He was getting the suzerainty from those places, but they were the feudatories. They were not under direct control of Harsha. ठीक है, और हमने ऑलरेडी देखा कि ईस्टर्न इंडिया में ही फेस ऑपोजिशन फ्रॉम शेवाइट किंग शशांका ऑफ गौड़ा. ठीक है, और इन्होंने बोधि ट्री ऑफ बदगाय को भी गिरा दिया था. ठीक है, एंड हर्षा साउथवर्ड मार्च वाज स्टॉप्ड एट नर्मदा रिवर. ये भी हमने डिस्कस कर लिया. बाय हुम? बाय द चालुक्य किंग, दैट इज पुलकेशिन सेकंड. ये सेकंड आएंगे यहाँ पे. ठीक है, so we'll see this. So this will be there, and these are very very important from prelims perspective. Okay, and इसके अलावा आपका आप अगर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखोगे ऑफ हर्षा रूल्स. ओके, हर्षा गवर्न हिज एम्पायर द सेम लाइंस एज द गुप्ताज, बट दिस एडमिनिस्ट्रेशन हैव बिकम फ्यूडल एंड डिसेंट्रलाइज्ड. ये हमने आपको ऑलरेडी बोला. ओके, क्यों? बिकॉज इसमें आप देख सकते हो कि इसमें आपका जो टेरिटरीज, आई विल राइट वन पॉइंट फॉर यू ऑल हियर. ओके, टेरिटरीज ऑफ हर्षा वाज डिवाइडेड, ओके, इनटू टू पार्ट्स. So one was what? One was the direct territories, and the other one was your feudatories. ठीक है, so that means what? This was a type of administration. Now this feudatories actually led to what? Rise of feudalism and decentralization in the Harsha's time period. ठीक है, और जो आपका ये दोनों टाइप का है, तो डायरेक्ट टेरिटरीज के अंदर आपका सेंट्रल प्रोविंसेस, ये हमने ऑलरेडी देखा है. सेंट्रल प्रोविंस मतलब यूपी, ओके, एमपी, पंजाब, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, ऑल दिस केम. और फ्यूडिटरीज का अगर आप देखोगे तो इसमें जलंधर, कश्मीर, सिंध, नेपाल. ओके, जस्ट टू राइट एन एग्जांपल अगर आपको चाहिए. ठीक है, तो वी कैन सी दैट जलंधर. ठीक है, कश्मीर भी था उसमें. ओके, डायरेक्ट कंट्रोल में कश्मीर नहीं था, लेकिन फ्यूडिटरीज में कश्मीर था. ठीक है, देन कामारूपा, ओके, दैट इज असम. ये क्वेश्चन असम हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है. देन आपका सिंध प्रोविंस, ओके, आपका सिंध प्रोविंस, ओके, एंड देन इवन नेपाल, ऑल दिस वेयर
योर फ्यूडिटरीज एंड डायरेक्ट अगर आप देखते हो तो इसमें आपका सेंट्रल प्रोविंस था, ठीक है, प्रेजेंट जो आपका ये हो गया मध्य प्रदेश, ठीक है। देन आपका बंगाल आ गया इसमें बिकॉज शशांक को हरा दिया था हर्षा ने। देन आपका कलिंगा, ओके। देन आपका राजस्थान, ओके, एंड राजस्थान एंड ऑल्सो आपका गुजरात, okay, then Bihar was also there, so all these things were under coming under your, so देखो आपको अगर क्वेश्चंस पूछेंगे ऐसे तो you can see this, okay, and he was also keeping a huge army and land grants continued, obviously we saw this part, okay, and then जो आपका है अच्छा इसमें आप ये जो आपने देखा अभी कि पुलकेशिन टू, ओके, ही वाज द एक्चुअली द चालुक्य किंग, ओके, हमने ये ऑलरेडी देखा है। तो इसमें अगर आपको टाइम पीरियड जानना है तो दिस वाज अराउंड, यू कैन से अराउंड 618 टू 619 एडी। तो दिस एक्चुअली टाइमलाइन बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, ठीक है, तो आपको ये जानना पड़ेगा। He was stopped at Narmada, and this type of questions are coming in the exam also. Okay, and Savat King Shashanka of Goda, this is also very very important from exam perspective. तो ये आपको बस जानना है। देन फ्यूडरेशन एंड डायरेक्ट कंट्रोल, यू सी दिस, एंड हुएन सिंह का ऑलरेडी हमने देखा है कि हुएन सिंह वाज देयर। हर्षा का जो रेवेन्यू है, ओके, दिस वाज डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। तो हुएन सिंह ने ये इन्फॉर्म किया है, पहला पार्ट आपका एक्सपेंडिचर ऑफ किंग था, लेकिन ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सेकंड जो था वो स्कॉलर्स के लिए था, थर्ड जो आपका ऑफिशियल्स एंड पब्लिक सर्वेंट्स, एंड फोर्थ आपका रिलीजियस पर्पस के लिए। तो रिलीजियस पर्पस के लिए भी हर्षा ने पैसे रिलीज किया था। Okay, so from that perspective it becomes important for you to know, okay. After this, if you see that whether there was forced labor or not, okay, whether there was forced labor or not, yes, there was certain aspect of forced labor in Harsha's time period also, okay, and जो खास करके जो administration था वो almost same था as that of Gupta's, okay, and we have already seen this। और जो public records, okay, Harsha's empire also kept a what law and order, and was law and order जो था वो इतना अच्छे से मेंटेन नहीं था, लेकिन strict punishment was continued like that of Gupta's, okay, and under the influence of Buddhism you can see that the severity of punishment was mitigated later on, ठीक है, and you can see the influence of Huan Singh। Harsha became a great supporter of Buddhism and made generous endorsement to it। तो ये थोड़ा सा बाद में हुआ, after Huan Singh came, okay, and जो archive of Harsha period है, ओके, ये पॉइंट आपको आपके लिए मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूं, जो आपका द आर्काइव ऑफ हर्षा, ओके, द आर्काइव ऑफ हर्षा, ओके, इसको एक नाम से, द हर्षा पीरियड, इसको एक नाम से जाना जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्चुअली योर प्रीलिम्स। सो वाज नोन एज व्हाट, अगर किसी को पता है, इट वाज नोन एज योर नीलो पीटू, ओके, इट वाज नोन एज योर नीलो पीटू। सो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हर्षा का जितने एडमिनिस्ट्रेशन हो, ओके, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स हो ऑफ हर्षा's टाइम पीरियड, ऑल दिस थिंग्स हैव बीन आर्काइव्ड एंड दिस वर्क इज नोन एज योर नीलो पीटो, ठीक है, एंड इट वाज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द योर स्पेशल ऑफिसर्स, ओके। और जितने भी आपका सिर्फ और हर्षा का टाइम पीरियड का जो लिखा हुआ रिटन रिकॉर्ड है, इसका एक खासियत है कि जितने भी अच्छा काम होता था वो तो रिकॉर्ड में आ ही जाता था, लेकिन जो बुरा काम होता था ना, जो गलती होता था फ्रॉम हर्षा's एडमिनिस्ट्रेशन, इवन दोज थिंग्स वर आल्सो मेंशन। सो दिस इज अ गुड थिंग दैट, एंड दिस इज अबाउट द ऑनेस्टी दैट ही contributed towards the society, ओके, एंड उनका एडमिनिस्ट्रेशन में आपका जस्टिस सिस्टम बहुत ही अच्छा होता था, ओके, एंड ही वाज आल्सो वेरी पंक्चुअल इन डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज, ओके, एंड ही एक्चुअली मेड अ वेरी फ्रीक्वेंट विजिट्स ऑफ इंस्पेक्शंस थ्रू आउट हिज डोमिनियन। तो हर्षा वाज एक्चुअली डूइंग अ लॉट ऑफ फ्रीक्वेंट विजिट्स, ओके, ऑफ इंस्पेक्शंस। तो ये बहुत ही अच्छा काम होता था। सो थोड़ा सा जल्दी से हम हर्षा एंड हिज बुद्धिज्म के बारे में देख लेते हैं, बिकॉज हर्षा फॉलो द टॉलरेंट रिलीजियस बुद्धिज्म। हुएन सेंग का काफी इन्फ्लुएंस था उनके ऊपर। अर्लियर टाइम्स में ही वाज अ सैविज्म, ओके, ही वाज फॉलोइंग सैविज्म एंड ही ग्रेजुअली बिकेम अ ग्रेट पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म। और हमने ये देखा है, ओके, बहुत सारे किंग्स के साथ ऐसा हुआ है, इवन विद द ग्रेट एम्परर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी दैट इज अशोका के साथ भी, इवन गुप्तास के टाइम पीरियड में भी ऐसा हुआ है, अजात शत्रु के साथ भी ये हुआ था। सो यू हैव सीन द रोल ऑफ इन्फ्लुएंस, ओके,
the role of influence of Buddhism was very high at that time period. Okay, now he also and this was also visible, दो हमें assembly देखना पड़ेगा आपका एक कनौज assembly जो है. Okay, he convened a grand assembly at Kannauj to widely publicize the doctrine of Mahayana. देखो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज ये पॉइंट ऑलरेडी क्वेश्चन में आ चुका है आपका एग्जाम में. ठीक है, कि ये जो कन्नौज वाला है ना, कन्नौज का जो असेंबली है, इस असेंबली में हर्षा ने महायाना फॉर्म ऑफ डॉक्ट्रिन को पब्लिसाइज किया था, नॉट द हिनायंस और द अदर फॉर्म्स. ठीक है, तो इसको आपको अलग से गलती करने के लिए आपको क्वेश्चन दिया दे सकते हैं कि ऐसे दे सकते कि क्योंकि हर्षा ने और एक कॉन्फ्रेंस और एक असेंबली कंडक्ट करवाया था जिसका नाम है आपका प्रयाग, जो इलाहाबाद में हुआ था. ओके, जो आपका इलाहाबाद में हुआ था, दैट वाज योर प्रयाग असेंबली. तो प्रयाग असेंबली बोल सकते हैं कि उसमें आपका महायाना पब्लिसाइज किया था, लेकिन वो गलत होगा बिकॉज इट हैपेंड इन द कनौज असेंबली. ओके, दिस आल्सो केम इन योर एग्जाम इन द यूपीएससी प्रीलिम्स. ठीक है, देन मूविंग अहेड we can look after the formation of new states and rural expansion in the peninsula of that time period. ठीक है, इसको हम आएंगे about the Pallavas and everything, we will see this part. ठीक है, but before that थोड़ा सा 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको देना चाहता हूं यहाँ पे about हर्षा's टाइम पीरियड. ओके, in details, so let us see that first. And this is what I want to highlight about the two important, okay, assemblies. Okay, two important assemblies that was done by your Harsha. Okay, that were done by your Harsha. So let us see the important assembly, okay, of Harsha's time period. So ये प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ. So पहला जो है आपका, that is your कनौज, okay, assembly. So कनौज assembly, you know that यहाँ पे आपका हर्षा ने, ये रिलीजियस असेंबली था. ठीक है, इट वाज अ रिलीजियस असेंबली. ओके, और जो रिलीजियस असेंबली था यहाँ पे आपको, दिस वाज हेल्ड एट कनौज. ओके, क्यों? बिकॉज उनको ऑनर देना था. टू ऑनर हुम? यू नो दिस, टू ऑनर द चाइनीज, ओके, ट्रेवलर. क्या नाम था उनका? दैट इज हुएन संग. ओके, चाइनीज ट्रेवलर, दैट इज योर हुएन संग. उसके बाद उन्होंने इसको ऑनर दिया एंड ही हैड एस्टैब्लिश्ड दिस असेंबली, दैट इज योर कनौज असेंबली. एंड इसमें बहुत सारे रिलीजियस सेक्ट्स के आपके किंग्स को बुलाया, स्कॉलर्स को बुलाया. ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी से बुलाया था, और इसमें आपका जेन्स आल्सो पार्टिसिपेटेड. ओके, एंड दिस असेंबली वेंट ऑन कंटिन्यूअसली फॉर 23 डेज. ओके, 23 डेज के लिए असेंबली हुआ था. और हुएन सांग ने इस असेंबली में महायान डॉक्ट्रिन का वैल्यूज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था. ओके, सो दैट इज वाई ये मैंने आपको इसमें ऑलरेडी इस लाइन में लिखा हुआ है कि कनौज में पब्लिसाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ महायाना. ठीक है, एंड हुएन सांग ने बहुत ब्यूटीफुली ही हैड डिस्क्राइब. लेकिन क्या हुआ, इस असेंबली में आपका एक वायलेंस ब्रेकआउट हो गया था. ओके, और उसके बाद लेकिन सून इट वाज ब्रॉट एक्चुअली अंडर द कंट्रोल एंड द गिल्टीज वर एक्चुअली पनिश्ड. ठीक है, और वायलेंस में भी जैसे आज के टाइम पे आपका रिलीजियस इशू को लेके पॉलिटिसाइज कर देता है, तो उस टाइम पे भी ऐसा कुछ होता होगा. ओके, एंड और ताकि हुएन संग अबाउट दिस इंसिडेंट बुरा ना लिखे, इसीलिए एक्चुअली हर्षा गेव अ लॉट ऑफ एक्सपेंसिव एंड कॉस्टली गिफ्ट्स टू हुएन संग. ठीक है, सो दिस वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट योर कनौज असेंबली. एंड द सेकंड असेंबली दैट हर्षा हैड ऑर्गेनाइज्ड वाज योर इलाहाबाद. ओके, इलाहाबाद असेंबली और योर प्रयाग असेंबली. ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दिस टाइम पीरियड. और इसमें आपका जो हुएन संग ने मेंशन किया है, दिस इज नोन एज योर प्रयाग, ओके, असेंबली और इलाहाबाद असेंबली. और इसमें आपका एक कॉन्फ्रेंस हुआ था. ओके, इट वाज वन अमंग द कॉन्फ्रेंसेस रूटीनली जो कन्वेन किया गया था बाय हर्षा वंस इन 5 years. ठीक है, एंड हर्षा गेव अवे हिज एनॉर्मस वेल्थ एज गिफ्ट्स टू द मेंबर्स ऑफ ऑल रिलीजियस सेक्ट्स. सो दिस वाज it was a routine. Okay, it was a routine, आप बोल सकते हो कि it was a routine conference which Harsha conducted, okay, once in 5 years. And he actually, gave away lot of gifts to all religious sects. So हर्षा काफी सेकुलर था उस टाइम पीरियड में. ओके,
और बहुत सारे गिफ्ट्स उन्होंने दिया था, एनॉर्मस वेल्थ, ओके, एज गिफ्ट्स टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द रिलीजियस सेक्स। और वैन सेंग के हिसाब से हर्षा वाज वेरी वेरी लेविश, ओके, और उन्होंने उनका ट्रेजर भी कभी कभी एम्प्टी कर देते थे इन ऑर्डर टू गिव अवे ऑल दिस आपका गिफ्ट्स, रिलीजियस गिफ्ट्स टू मेनी अदर इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द रिलीजियस सेक्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे, okay, we can talk about the art and architecture, okay, of Harsa's time period, and you can see about the art and architecture, okay, art and architecture of his time period. So it was art and architecture was almost similar, okay, it was almost similar, you can say it was similar to Gupta। कोई खास स्पेशल आर्ट एंड आर्किटेक्चर इस टाइम पीरियड में डेवलप नहीं हुआ था, ओके, एंड इट वाज ऑलमोस्ट similar to the Gupta, and they Harsha did not have, okay, they did not have any distinct जैसे गुप्ता में हमने देखा था नागारा स्टाइल आ गया था, ठीक है, तो हर्षा में कोई डिस्टिंक्ट स्टाइल इमर्ज नहीं हुआ, डिड नॉट हैव एनी डिस्टिंक्ट स्टाइल, ओके। और जो आपका बाकी मोनेस्ट्रीज वगैरह तो था ही उस टाइम पीरियड में, बट Wen Seng has actually spoke about a prominent thing on the field of art and architecture in the time period of Harsha dynasty, and that is he speaks about a copper state, okay, he speaks about a copper statue, ठीक है, of किसका, बुद्धा का, ओके, और जो आपका 8 फीट हाइट था, ओके, ऑफ कॉपर स्टेचू। तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये कॉपर स्टेचू वैन सिंह ने किसका टाइम पीरियड में ये डिस्क्राइब किया, दिस इज अबाउट द हर्षा टाइम पीरियड, ओके। और एक फेमस ब्रिक टेम्पल है, ठीक है, ये आपको जानने के लिए इंपॉर्टेंट है, दिस ब्रिक टेम्पल ऑफ, ओके, लक्ष्मणा का एक फेमस ब्रिक टेम्पल है, कहां पे है आपका, सिरपुर, ओके, आपका सिरपुर में है, इसमें आपका थोड़ा सा आर्किटेक्चर दिखता है, अदरवाइज एवरीथिंग वाज सेम एज द गुप्ता डायनेस्टी, ओके। एंड बियॉन्ड दिस अगर आपको और भी चीजें जानना है तो दिस वाज लाइक हर्षा का थोड़ा सा अगर डिटेल्स हमें जानना है, ओके, अगर थोड़ा सा पर्सनल डिटेल्स अबाउट हर्षा, सो ये कभी कभी प्रीलिम्स में आ सकता है, ओके, अबाउट फादर्स नेम एंड मदर्स नेम ये आ जाता है, okay, the dynasty to which he belonged, okay, which dynasty Harsha belonged, it was your Pushyavutis, okay, he belonged to the dynasty of your Pushyavutis of Thaneshwar, okay, so ये थोड़ा सा important point है from exam perspective, and Pushyavutis were also known as of which dynasty, of the Vardhana dynasty, ठीक है, तो ये थोड़ा सा important होता है, एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है ये पॉइंट। एंड जो उनका पिताजी का नाम है ये आप देख लो, ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ओके, दैट इज योर प्रभाकर वर्मन, ओके, प्रभाकर वर्मन इज वाज द नेम ऑफ द फादर ऑफ हर्षा। सिस्टर का हमने ऑलरेडी देखा था, दैट इज योर राजश्री, ओके, और हमने स्टोरी भी सुना, ओके, एंड शी वाज मैरिड टू हुम, गृहवर्मन ऑफ कनौज, ठीक है, जिसको शशांक ने मार दिया था, शी वॉज मैरिड टू गृहा, ओके, गृहवर्मन ऑफ कनौज, ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड वाइफ ऑफ हर्षा, उनका नाम था आपका दुर्गावती, ओके, दुर्गावती, एंड दे हैड 2 सन एंड अ डॉटर, ओके, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट थोड़ा सा आप ये देख सकते हो। देन अगर हर्षा का अकाउंट्स के बारे में हम अगर क्वेश्चन आता है मेंस में, तो यू कैन राइट अबाउट वेन सेंग्स अकाउंट्स, ओके, जो हमें अभी सारी डिटेल्स में डिस्कस किया। देन हर्षा चरित्र रिटन बाय बानाभट्टा, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर थोड़ा सा हम लिटरेरी वर्क्स देखेंगे हर्षा का टाइम पीरियड का, ओके, लिटरेरी वर्क्स एंड इंस्क्रिप्शंस, अगर because these are always important and these are some of the favorite topics of the exams, okay, inscriptions and literary works, so ये थोड़ा सा important होता है from exam perspective, ठीक है। तो so literary works अगर आप देखोगे तो इस time period में हर्षा is actually credited with some Sanskrit works, okay, कुछ संस्कृत वर्क्स के लिए हर्षा को क्रेडिट दिया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो रत्नावली, ओके, रत्नावली वाज रिटन ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। देन प्रियदर्शिका, ओके, उन्होंने लिखा था, ओके,
Darshika. Okay, then you have Nagananda. Nagananda. All these were Nagananda. All these were very very important. Okay, literary works of Harsha's time period, and he himself was actually a very accomplished writer. ठीक है, हर्षा खुद एक बहुत accomplished writer था और उनको ही क्रेडिट दिया जाता था, उन्होंने ये तीनों चीज लिखा था. Okay, all these were written by Harsha himself. Okay, Harsha wrote these three works. Okay, then आपको बना बता आपको पता ही है, he was a court poet and he wrote the Harsha Charita. Okay, and Harsha generously supported. He actually, इतने सारे जो literary works होता था, why? Because he generously supported what? He generously supported your Nalanda, okay, university. और आपको पता है ये किसने बनाया था? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था. Okay, that is during the Gupta assembly. किसने बनाया था? कुमार गुप्ता? किसने? या फिर स्कंद गुप्ता? अगर आपको याद नहीं है, you should revise the notes, okay, of the last class. And this was the thing that Harsha was generously supporting the Nalanda University. And apart from that, अगर कुछ inscriptions के बारे में आप जानोगे, ठीक है, तो एक famous inscription है आपका Madhuban plate inscription. Okay, that is your Madhuban plate inscription. ये बहुत ही important है from exam perspective. Okay, Madhuban plate inscription. And और एक जो है आपका, that is your Sonpat inscription. Okay, Sonpat inscription, ये भी बहुत ही important है from exam perspective. And this actually all give the details about the chronology of your Harsha's time period. Okay, और एक जो आपका है, that is your Bansekra. Okay, okay, and this inscription was also, okay, it contains actually the signature, it contains the signature of Harsha. ठीक है, सो देखिए, आप अगर ये क्वेश्चंस आता है, आप वेरी इजीली यू जस्ट हैव टू रिवाइज मधुबन, सोनपत, बनसेकरा इंस्क्रिप्शंस. ऑल दीज आर रिलेटेड टू हुज टाइम पीरियड. आपको सिंपल क्वेश्चन दे देंगे, ऑप्शन दे देंगे अबाउट द रूलर्स ऑफ डिफरेंट टाइम पीरियड्स. सो योर आंसर विल बी डेफिनेटली हर्षा. ओके, सो apart from this, we have almost seen each and every important aspect of Harsha's time period. थोड़ा सा भी हम देखते हैं about your the military administration कैसा था उस time period में. Okay, and also the socio-economic aspects of Harsha's time period. Okay. So we are moving ahead with the military administration of Harsha's time period. Okay, what were the most important points of military administration? So you can know about that. He actually consisted of traditional 4 divisions. Okay, he had the traditional 4 divisions of military, and those were your on foot, then your on horse, then he had the chariot, okay, and the elephant. So these were the 4 divisions of his military. And the number of cavalries actually, okay, you can write down that the number of cavalries, okay, number of cavalries were more than 1 lakh. Okay, when more than 1 lakh, and elephants more than 60,000. Okay, he had more than 60k elephants. So you can imagine that it was quite big. Okay, and this was much more. So we are discussing about the traditional 4 divisions of the military administration of Harsha's time period, and we have seen that there were more than, it was huge, okay, more than 1 lakh cavalries and more than 60,000 elephants. And after this, we can talk about that this was actually much more than that of the Mauryan Empire. Okay, so this was huge, and we have already seen that ये जो कैपेसिटी है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर्षस टाइम पीरियड, ये मौर्यन के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा है. Okay, then moving ahead with the caste system. Okay, moving ahead with the socio-economic aspects of Harsha's empire. And if we discuss about the caste system, okay, let us see some of the points, and we can see that both Bana and Huensang portrayed a social life in the times of Harsha. ठीक है, तो सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ हर्षा's टाइम पीरियड के बारे में हमें कहां से पता चलता है? बाना
ओके, मनाभत्ता जिसने हर्षा सरिता लिखा था, एंड वेन सेंग का भी अकाउंट से हमें ये इस टाइम पीरियड का सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। एंड जो फोर फोल्ड डिवीजन ऑफ सोसाइटी है, दैट इज ब्राह्मीण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, दिस वाज प्रिवेलेंट। ओके, सो यू कैन सी दैट वर्णा सिस्टम, okay, was prevalent at this time period. After that you can talk about that the Brahmins जो है, okay, they were the most privileged section of the society. वो obvious बात है, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं वर्णा सिस्टम prevalent है मतलब you can know about it, okay. And definitely अगर Brahmins were the privileged section, so they will be also getting the land grants by the kings. Okay, this has become a common sense, so I'm not writing it, and you should always try to make your notes as minimum as possible. ओके, और रूलिंग क्लास कौन होंगे? ऑब्वियसली क्षत्रियाज ही होंगे, ओके, एंड वैश्यास मेनली ट्रेडर्स होंगे। एंड वैन सेंग ने आपका खास करके शूद्रस का एक पॉइंट मेंशन किया था कि शूद्रस प्रैक्टिस्ड, ओके, शूद्रस प्रैक्टिस द एग्रीकल्चर ईयर, ओके, एंड दिस वाज मेंशन्ड बाय वेंसा, okay, and there were also many subcasts as well, ठीक है, many subcasts were also present at that time period. Then next important topic, if we look at the position of women of that time period, okay, and we come to know, so if we see what was the position of women at that time period, okay, so let us see. So you know that the position of women was not satisfactory at all, okay. We have already seen this from Gupta's time period, okay. Gupta's time period maybe position of women was not good at all, okay. And institution of Swayamvara, आपको पता होगा स्वयंवर जो आपका choice of choosing woman's husband एक practice होता था, okay, and this had declined, okay. So you can write down here that the institution of Swayamvara declined, okay, and remarriage of widows was also not permitted. Okay, remarriage of widows was not permitted, and आपका this actually was particularly among the higher caste, okay. And जो system of dowry है, system of dowry, if you see this had also become very common, okay. This became common in the society, and the sati practice of sati was also common by this time period, okay. So you can see that the position of women had declined, okay. And let us see the last topic of this lecture about the trade and commerce of the economy, okay, of Harsha's time period. And you can see that this actually declined, okay, it declined. And this is evident from where? This is evident from, okay, you can write down, this is evident from the decline in the trade centers, okay, decline in the trade centers, then your less number of coins, because we have seen जितना ही ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लोरिश होता है उतना ही ज्यादा आपका कॉइन्स इश्यू होता है, ओके, कॉइन्स कलेक्ट होता है। अगर ये नहीं होता है then obviously that means that the trade and commerce is declining, and also the activities, okay, of the merchant guilds were slow. Activities of merchant guilds were slow, okay. Apart from that, there was also decline of trade in your handicraft industry along with agriculture, okay. And this actually led to the rise of self-sufficient village economy. So this is an important development which happened during the Harsha's time period, okay. This had also affected the handicrafts, okay, and agriculture. So you can write down that this led to the rise of self-sufficient village economy, ओके। एंड जो आपका नॉर्मली ये डिक्लाइन हुआ, एंड बाय दिस टाइम पीरियड इसके बाद आपका हर्षा का डेथ हुआ। एंड आपको पता होगा कि हर्षा का कोई देयर वाज नो एनी हायर
ठीक है, that means he had no son, no daughter, and gradually after his death, okay, Harsha actually died. You can see this point, this is very important. Harsha died in 647 AD, okay, ruling for 41 years almost, okay, 41 years, and he died without any heirs, so his empire disintegrated very soon after his death. Okay, and with this, we almost come to an end with your ancient history classes. In the medieval classes, we'll start with the Pallavas of Kanchi, okay, and we'll move ahead with the Cholas and everything, then Islam invasions, okay, Afghan invasions, then Delhi Sultanate and Mughals, and everything will cover in the medieval part. One last part that is left out, okay, from exam perspective is कि आपका जो आर एस शर्मा का किताब है उसमें कुछ important terms दिया हुआ है, okay, at the last. So I want to discuss those terms because वहां से questions काफी सारे आते हैं, okay, and that also becomes important from your exam perspective. So let us quickly go ahead and quickly cover those important terms, and then we come to an end with your ancient Indian history classes. So moving ahead with the important definitions, you can see सबसे पहले जो आपका किताब में है that is agrahara, and it means the donation of land or taxes from a village by the king to the learned Brahmans. So what is agrahara? Simple question can come in your prelims exam. Okay, next that is your Agnikula. Okay, and Agnikula is certain Rajput clans who claim to have emerged from Yajna Havana Kunda. Okay, that is determined as Agnikula. Then it is your Ajivika, and this is a heterodox sect of religion, okay, which is very close to Jainism, which flourished at the time of Buddha. ठीक है, देन अमात्य हमने ऑलरेडी बहुत बार इसको डिस्कस किया है इन योर लास्ट लेक्चर्स. इट इज अ ऑफिशियल डेजिग्नेशन फॉर हाई ऑफिशियल यूज राइट फ्रॉम द मौर्यन पीरियड. Then you have the Aryanyakas, okay, and these are the Vedic texts traditionally composed by hermits, and this is actually were written in the forest are concluding parts of the Brahmanas. So Brahmanas were actually जो वेदास है ना आपका चार वेदास है, चार वेदास के साथ आपका कुछ इंपॉर्टेंट ब्राह्मणास ये भी आपका टेक्स्ट है, ठीक है, किताब है. तो हर वेदा का काफी सारे ब्राह्मणास होते थे, ओके, एंड ये this Aryanakas were also written in forest and concluding parts of the Brahmanas, okay, did not lay much emphasis on rites and rituals. Then Artha, you know this term, okay, this is coming from the word Arth means economy, okay, this is prosperity and well-being, okay. Then it is your Artha Shastra, you already know this, okay, this was a work, okay, which was done by the Acharya Chanakya or Kaushalya, okay, during the time of Mauryan period, okay. This is discussing about your theory of polity, okay. Next, the ashrama, okay, ashram, that is your four stages of life, okay, in the Hinduism, and you know the four ashramas are a brahmacharya, student life, grihastha, householder life, vanaprasth, retired, and sannyas, that is a renunciation, okay. Next is the ayukta, okay, and this is the designation of an officer frequently used in the Mauryan period, okay. Then it's bhagavat, you know this, it's a sect devoted to Vishnu. Then bhukti, ओके, ये गुप्ता टाइम पीरियड में आपका एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ अ किंगडम था, ओके, जैसे आज के टाइम पे ग्राम पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, ओके, तालुका है, तहसील है, ओके. सिमिलरली भुक्ति वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ द गुप्ता किंगडम. देन बोधिसत्व, इसको बहुत डिटेल्स में हमने डिस्कस किया महायाना बुद्धिज्म के टाइम लेक्चर में, ठीक है, यू नो दिस. देन द ब्रह्मचारिन, ओके, दिस इज अबाउट द सेलिबेसी स्टूडेंटशिप, ओके, द फर्स्ट फोर स्टेजेस ऑफ आश्रमस ऑफ लाइफ. Then there is the Brahmanas, you know this. This is already a Vedic text dealing with the rituals and sacrifice. ठीक है, Brahmanas, इसको carefully आप देखना. It is a Vedic text dealing with the rituals and sacrifice. Then Chatya, okay, ये हमने बुद्धिज्म लेक्चर में डिस्कस किया था और आर्ट एंड कल्चर क्लासेस में इसको इन डिटेल्स हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है. एंड दिस इज द टर्म इज यूज्ड फॉर बुद्धिस्ट प्लेस ऑफ वर्शिप, ओके. देन चारवाका, ये भी आपका रिलीजियस सेक्ट है एक, ठीक है, जो मेटेरियलिस्टिक फिलोसफी में बिलीव करता है, ओके. ये अलग अलग अदर रिलीजियस सेक्ट से ये काफी अलग है, ओके. एंड चारवाका ओरिजिनली नोन एज योर लोकायता एंड बृहस्पत्य इज एन एंशिएंट स्कूल ऑफ इंडियन मेटेरियलिज्म फॉर्म है. ये आपका डिजायर्स, आपका लग्जरी लाइफस्टाइल के ऊपर ज्यादा, और चारवाक इनफैक्ट टेल्स यू कि आपको अगर जिंदगी जीना है, ठीक है, इफ यू वांट टू लिव अ लग्जरियस लाइफ, यू टेक loan, you take borrowings from others and then you fulfill your desires, ठीक है. This principle is talking about that, but I don't think अगर आप लोन लेके अगर आप
एक मेटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हो, देन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू ब्रिंग मोर एंड मोर सोरो इन योर लाइफ। ओके, और चार्वाक प्रिंसिपल ने आपका वेदास को रिजेक्ट किया था, ठीक है। देन devadana, okay, it is a donated revenue assigned to a temple, okay, so you can see this. Then it is about a digambara, तो digambara sect we had बहुत डिटेल्स में डिस्कस किया है, ओके, जो आपका श्वेतांबरा एंड दिगंबरा के बारे में। ओके, सो लेट अस नॉट डिस्कस राइट नाउ। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो यू कैन गो एंड विजिट द Jainism and Buddhism classes. Then Doab, you know, this is the area between the two rivers, ठीक है, Dwija. So this is the ये जो हम lagoon लेते हैं, ठीक है, the second bond, the twice bond, referring to the first birth, which is the physical birth, and the second, the initiation of into educational status, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्विजा, ये क्वेश्चन में आता है, ठीक है। देन गर्भगृह, दिस इज ये जो आप मंदिर में जाते हो, ओके, मंदिर में जो मेन, जो एकदम आपका जो मेन सेंट्रम जहां पे रहता है, ओके, भगवान का आइडल हो सकता है, सो दैट इज योर गर्भगृह। ओके, नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में हम देखेंगे इसको, ओके, इन डिटेल्स। एंड दिस इज, इसमें जहां पे आपका मूर्ति और आइडल रहता है भगवान का, ओके। देन ग्रामा, यू नो, दिस इज वेरी सिंपल, ग्राम मीन्स विलेज। देन हीनायना, इट इज वन ऑफ द मेजर फॉर्म, द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, ओके। जाति आपको पता है ये, ठीक है, दिस इज अ फैमिली और अ ग्रुप ऑफ पीपल डिफाइंड बाय देयर प्रोफेशन। देन यू हैव कल्पा, okay, and what is kalpa? It is a day of brahmana equivalent to 4320 earth years। तो देखो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा सा, ठीक है, ये क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा है तो पूछा जा सकता है। ओके, सो व्हाट इज कल्पा? सो इट इज अ डे ऑफ ब्राह्मण, ओके, ब्रह्मा, इक्विवेलेंट टू 4320 अर्थ ईयर्स। देन यू हैव द कलयुग, ठीक है, जो आपको फोर्थ एंड फाइनल एज ऑफ, आपको पता है, एयन, एंड अ कंप्लीट युग स्टार्ट्स फ्रॉम सतयुग, ओके, त्रेतयुग एंड द्वापर युग इनटू कलयुग। एंड our प्रेजेंट टाइम बोला जाता है कि अभी कलयुग में है, ओके, एंड विच इज द एंड ऑफ द लाइक विच स्टार्टेड एक्चुअली एट द 3102 BCE विद द एंड ऑफ द महाभारत वॉर। एंड इसको बोला जाता है कि ये दुनिया का अंतिम है, ओके। मे बी कोरोना वायरस इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ इट, ओके, वी नेवर नो अबाउट इट। अभी तो केसेस बहुत बढ़ रहा है, सो इंडिया के लिए सिचुएशन बहुत खराब होने वाला है अभी, along with Assam। And I can tell you that government, okay, will not be able to uh, look at it अगर ये सिचुएशन बढ़ जाता है। एंड दिल्ली में आई वाज डिस्कसिंग फ्यू थिंग्स विद सम ऑफ द फैकल्टीज ऑफ दिल्ली, एंड दे वर सेइंग दैट वन ऑफ द फैकल्टी ही सेड लाइक उनका सोसाइटी में जो रहता है, वो सोसाइटी में उसमें अराउंड 30 फैमिलीज रहते हैं, और उसमें आपका 3 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है, लेकिन आज तक उस सोसाइटी में कोई टेस्ट नहीं किया गया, एंड पीपल आर रोमिंग अराउंड नॉर्मली। सो दिस इज अ डेंजरस सिचुएशन। इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट, द सोसाइटी हैज गिवन अप ऑलरेडी, ओके, बिकॉज टेस्टिंग नहीं हो पा रहे, इतने टेस्टिंग किट्स है नहीं, एंड जितना टेस्टिंग होना चाहिए उतना टेस्टिंग नहीं हो पा रहा है। सो डेफिनेटली आपका टेस्टिंग का रिजल्ट भी बहुत डिले हो रहा है, 2-3-4 दिन के बाद आ रहा है। सो डेफिनेटली उस 3-4 दिन में और लोगों में वो स्प्रेड होके जा रहा है। सो दिस इज, इट मीन्स दैट कम्युनिटी स्प्रेड हैज स्टार्टेड एंड इट इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। सो द बेस्ट सॉल्यूशन इज प्रिवेंटिव mechanisms, stay home, stay safe, and follow the guidelines very carefully, okay। And karma, moving ahead, karma, it is the action or the deed, and also the theory of conditioning one future's birth, okay। Then kayasta, it is a jati, okay, associated with the revenue records, ठीक है, एंड फर्स्ट फाउंड इन द मौर्यन पीरियड। देन 4 वर्णास, ये और रिपीट नहीं करूंगा, आपको पता ही है चारों वर्णास के बारे में। खारोस्ती, ये बहुत डिस्कस किया हमने, ओके, अबाउट द स्क्रिप्ट। देन इट इज अ कोटम, इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, ओके। देन कुला, इट इज अ क्लैन और एक्सटेंडेड फैमिली, ओके। देन कुमारामात्य, इट इज ऑल्सो एन ऑफिशियल डेजिग्नेशन, ठीक है, ये आपका गुप्तास के टाइम पीरियड में इसको यूज किया गया था। देन आपका महाक्षात्रपा, okay, it is a great governor, a title taken by rulers mainly by the Saka kings, ठीक है। Then Maharaja Dhiraja, great kings of kings, an imperial title। Then Mandalam, okay, it is an administrative unit frequently used in South India, okay, you can see this। Apart from that, you have the Matha, okay, this is the Matha, and it is a center of educated attached to a temple or religious establishment, okay। Then you have the Matsyayanaya, okay, this is a political theory जहाँ पे आपका state of anarchy, okay, a strong doer। And Matsyanaya is a Sanskrit meaning the process of big fish eating the small fish, that is the law of the jungle, ठीक है। तो Matsyana means what? That state of anarchy जहाँ पे सरकार का कुछ चलता नहीं है, एक state of anarchy वहाँ पे चलेगा। Maya means illusion, you know this, okay। And then moksha, it relates from cycle to
साइकिल ऑफ रीबर्थ, ओके, जो आपका निर्वाणा प्राप्ति. देन नाडु, इट इज ऑल्सो एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, ओके, फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन साउथ इंडिया. निर्वाणा, इट इज अ रिलीज फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ, ठीक है. एंड मोक्षा, इट इज अ कॉन्सेप्ट इन हिंदुइज्म. सो वी ऑलरेडी सीन दिस, ओके. देन निर्वाण आपका हिंदुइज्म में, बुद्धिज्म में होता है, एंड मोक्ष आपका हिंदुइज्म में होता है. देन निशाका, इट इज अ टर्म यूज फॉर कॉइन, okay. Then Pali, you know this, it is a Sanskrit based language, okay, the Buddhist scriptures were recorded. Then Pana, it is also a term used for coin. Then Rashtra, you all know that it is used for the country. Then Sabha, जो सभा समिति होते थे वैदिक एज में, ओके, एक असेंबली होता था. उसके बाद आपका समिति, इट इज ऑल्सो अ लार्ज असेंबली. सभा में कम लोग रहते थे, समिति में ज्यादा, ओके. द मास वेर इन्वॉल्व, वुमेन वाज आल्सो इन्वॉल्व at that time period. Then Samakhya, it is one of the 6 major schools of philosophy in the ancient India. Okay, there are actually 6 major schools. ये हम आर्ट एंड कल्चर में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है. रिलीजन एस्पेक्ट में न्याय, वैशेषिका, संख्या, योगा, मीमांसा एंड वेदांत, ओके. एंड ऑल दिस विल बी डिस्कसिंग. और इसके अलावा, ओके, आपका हेटेरोडॉक्स स्कूल्स भी है. ये सारे ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स है, और हेटेरोडॉक्स स्कूल्स में आपका जैनिज्म, बुद्धिज्म, आजीविका एंड सारवाक आता है, ठीक है. देन Sati, you know this is a virtuous woman, okay, who has immolated herself on the funeral pyre of her husband, ठीक है. इसको एक्सप्लेन करना मैं नहीं सोच सकी, इसका जरूरत है, यू अंडरस्टैंड दिस. देन सेनापति, कमांडर ऑफ द आर्मी. संगम एज के बारे में हमने बहुत ही डिस्कस किया इन डिटेल्स, वन प्रॉपर लेक्चर इज देयर, ओके. Then Sataman, okay, this is a silver coin of which weight around 180 grains, ठीक है. Then Sikhara, it is a tower surmounting a temple, ठीक है. Sikhara, यह आर्ट एंड कल्चर में हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, प्लीज डोंट वरी अबाउट इट राइट नाउ. श्रेणी, ये गिल्ड ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ क्राफ्टमैन एंड मर्चेंट्स, ठीक है. श्वेतंबर एंड दिगंबर आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है. स्तूपा ऑलरेडी पता है आपको, स्तूपा एंड चैत्यास, ओके, ये बुद्धिज्म का आर्किटेक्चर है, इसको हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्लास. तांत्रिक, यू नो, इट इज अ रिलीजियस कल्ट, ठीक है. थेरावादा, ये बुद्धिज्म सेक्ट है, अगर भूल गया आप लोग, प्लीज रेफर द बुद्धिज्म क्लासेस. उपनिषद, दिस इज अ फिलोसॉफिकल टेक्स्ट इंक्लूडेड इन द वैदिक लिटरेचर, ठीक है. वर्ण आपको ऑलरेडी पता है, दिस इज द फोरफोल्ड डिवीजन ऑफ हिंदू सोसाइटी. देन वेदांत, इट इज वन ऑफ द मेजर फिलोसॉफिकल स्कूल्स इन एंशिएंट इंडिया. विहारा, आपको पता है, विहारा और चट्या के बीच, चट्या वाज द प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर बुद्धिज्म, एंड विहारा, इसमें आपका मॉन्क्स रहते हैं, ठीक है. यवन, ये भी हमने काफी डिटेल्स में डिस्कस किया था. दिस इज अ टर्म यूज इन इंडियन सोर्सेज फॉर पीपल ऑफ वेस्टर्न एशिया, ठीक है, जो ग्रीक्स एंड रोमन्स है, यवन प्रिया बोलते हैं उनको, ठीक है. देन योगा, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी इन एंशिएंट इंडिया. एंड योग, इट इज एनी ऑफ द 4 एजेस ऑफ द लाइफ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है. सो with this we have come to an end, okay. Thank you so much. Please revise the lectures, please listen all the lectures. 14 lectures में हमने ancient Indian history खत्म किया है, notes आपके साथ present है, please go through it everything in details, and all the best for your exam. ancient history का exam होगा अभी कल, and आप बढ़िया से exam दो, 100 में से 80 क्वेश्चन मिनिमम आपका सही होना चाहिए, ठीक है. we'll meet in the next lecture जहाँ पे हम पल्लवस के थ्रू स्टार्ट करेंगे, and we'll start with the medieval Indian history part. Okay, thank you so much and all the best.